Today the topic of discussion is conjugate of complex number. Let I have number z which is equal to a plus iota b. Then z conjugate will be represented by this bar. Z conjugate will be a minus iota b. In conjugate we just change the sign of iota. If I have iota, then convert it into minus iota, and if it is minus iota, then convert it into iota. Just change the sign of iota. For example, let z equal to 3 plus 4 iota. Then z conjugate will be 3 minus 4 iota. जो आयोटा वाली टर्म है उसका हमने साइन चेंज कर देना. Suppose let z equal to 5 minus 9 iota. Then change the sign of iota. It will be 5. Z conjugate will be 5 plus 9 iota. First of all, simplify the z. Suppose z is 3 minus 9 iota over 4 plus 9 iota raised to power 4. First of all, simplify it. Write it into a plus iota b form. Then change the sign of iota. That will give you z conjugate. After simplification, we can take z conjugate. So this is all about conjugate of complex number. Now we will discuss its properties. These properties helps us to solve the questions. So first property is z conjugate of conjugate which is equal to z. अगर हम डबल कॉन्जुगेट ले लेते हैं किसी नंबर का तो वो कॉन्जुगेट जो है वो हमें z ही देगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है. लेट्स प्रूव इट. लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b. सो इफ आई एम टेकिंग z कॉन्जुगेट इट विल बी a माइनस आयोटा b, बिकॉज हमने आयोटा का साइन चेंज करना है. देन इफ आई एम टेकिंग डबल कॉन्जुगेट देन टेक कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर अगेन. सो दूसरी बार लेने से नेगेटिव जो है वो दैट विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव. सो इट विल बी a प्लस आयोटा b. सो विच इज इक्वल टू z. दो स्टेप्स में लिया. ए आयोटा विल बी चेंज टू माइनस आयोटा. सेकेंड कॉन्जुगेट लेने में माइनस आयोटा विल चेंज टू आयोटा. सो दोबारा हमारे पास z ही जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है. सो कॉन्जुगेट दो बार लेने के बाद वो z आ जाएगा. इसी तरह से सपोज मैं 3 बार कॉन्जुगेट ले रही हूँ, दैट विल बी जो 2 है वो तो कैंसिल हो जाएंगे. वी विल लेफ्ट विद ओनली 1 कॉन्जुगेट. अगर 5 टाइम ले रहे हैं तो इवन नंबर पेयर्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, दैट विल बी z कॉन्जुगेट. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज z plus z conjugate is 2 times real part of z. So real part of z, suppose z is a plus iota b, then what is real part of z? That is a. So I have to prove z plus z conjugate is 2 times real part of z. Let's prove it. First of all, take z is, let z equal to a plus iota b, then z conjugate will be a minus iota b. Now put these values in left hand side. Left hand side is z plus z conjugate, which will be a plus iota b plus a minus iota b. Iota b term will be cancelled out and you will left with 2a, and a is what? Real part of z. So we have proved it. Z plus z conjugate is 2 times real part of z. So next move to the third property. Third property is like I am adding z plus z conjugate. Now I am subtracting z minus z conjugate. It will be 2 iota imaginary part of z. Imaginary part of z. Let z equal to a plus iota b. Then z conjugate will be a minus iota b. And what will be imaginary part of z? From z I can write imaginary part equal to b. बिकॉज आयोटा के साथ जो भी टर्म अटैच होती है दैट इज इमेजिनरी पार्ट. सो इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू बी. सो नाउ पुट दीज वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड. z minus z conjugate, it will be a plus iota b with negative sign a minus iota b, and if you open this bracket because it contains negative sign, so sign will be changed. ब्रैकेट के अंदर जो है वो टर्म्स के साइन चेंज होंगे. a will be cancelled, it will be 2 iota b, and b is imaginary part of z. So which is equal to right hand side. I have taken the left hand side and proved that it is equal to right hand side. So property 3 is proved. These properties can be used in questions also. So first of all I am proving these properties, and in next when we do the questions we will use these properties.
Next property is z equal to z conjugate both way implies z is purely real. This both way imply can be written as if and only if also. So if z equal to z conjugate, then z will be purely real, and if z is purely real, then z equal to z conjugate. इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि हम अगर ये लेके चल रहे हैं तो ये दिस पार्ट विल बी ट्रू, एंड अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो ये पार्ट प्रूव हो जाएगा. सो z जो है वो z कॉन्जुगेट के इक्वल है. लेट कर लो कि z इक्वल टू z कॉन्जुगेट. z इज a प्लस आयोटा b एंड z कॉन्जुगेट इज a माइनस आयोटा b. दिस इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ. ये चीज तभी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ नीचे वाला पार्ट होल्ड करेगा. सो a विल बी कैंसल्ड आउट. आई एम लेफ्ट विद 2 आयोटा b इक्वल टू 0. 2 is a constant, so I can divide it. Iota is a constant, so I can divide it. b equal to 0 by 2 iota, which is equal to 0. So I am getting b equal to 0. What is b? b is imaginary part of z. So imaginary part of z equal to 0. So z has two parts, a plus iota b, where b is 0 means imaginary part is 0, so this part is 0. So I am left with only z equal to a, and a is purely real because imaginary part है ही नहीं. a is a real part, so I can write z is purely real. So if I am taking z is real, so I can get the steps back and will get z equal to z conjugate. सो अगर z z कॉन्जुगेट के इक्वल है देन z विल बी प्योरली रियल, और अगर z जो है वो z प्योरली रियल है देन z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z कॉन्जुगेट. z will be equal to z conjugate. The next is a little bit different, that is z equal to minus z conjugate. This both way imply z is purely imaginary और जीरो. जहाँ तो वो जीरो होएगा जहाँ प्योरली इमेजिनरी होएगा. सो z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट. z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट. पुट द वैल्यूज एज a प्लस आयोटा b इक्वल टू नेगेटिव साइन कॉमन a माइनस आयोटा b. सो a प्लस आयोटा b एंड माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. आयोटा बी विल बी कैंसल. आई विल गेट 2a इक्वल टू 0. सो a इक्वल टू 0. a इक्वल टू 0 मीन्स z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एज आई नो. सो a इज 0, सो z इक्वल टू आयोटा b ओनली. सो इफ b इज 0 देन z इक्वल टू 0, और इफ b इज नॉन जीरो देन z इज प्योरली इमेजिनरी. दो ही केसेस बन रहे हैं हमारे पास, जहाँ तो z जो है वो अगर b की वैल्यू भी 0 होगी तो z 0 बन जाएगा. अगर b की वैल्यू 0 नहीं हुई तो z क्या होएगा हमारे पास प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पे a वाली टर्म नहीं है, रियल पार्ट जो है वो खत्म हो गया. सो दो केसेस बनेंगे, इधर z इक्वल टू 0 और z इज प्योरली इमेजिनरी. सो बोथ वे प्रूव करना है तो हम यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये ऑब्टेन करी तो बैक में वहाँ पे भी जा सकती हूँ. सो आई कैन राइट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, तो मेरे पास बोथ वे जो है वो रिजल्ट प्रूव हो जाता है. नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, कि अगर सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं होल कॉन्जुगेट ले रही हूँ प्लस के बाद यहाँ पे, तो आई कैन सेपरेट दैट कॉन्जुगेट. एडिशन जो है वो सेपरेट किया जा सकता है फॉर कॉन्जुगेट. सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ देन मैं कॉन्जुगेट को अलग अलग कर सकती हूँ. देन मैं मल्टीप्लाई, बेसिक ऑपरेशंस हैं ये सारे. अगर z1 z2 कॉन्जुगेट है देन आई कैन ऑल्सो सेपरेट देम z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट. एंड इफ आई एम डिवाइडिंग इट, मैंने डिवाइड पहले किया देन कॉन्जुगेट लिया, सो दैट विल बी इक्वल टू दोनों को कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर लो. सो दीज 4 प्रॉपर्टीज जो है वो रिलेटेड है ऑपरेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग ले रहे हैं. सो वी कैन प्रूव, आई एम गोइंग टू प्रूव वन पार्ट. लेट कर लो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z1, z2 इज c प्लस आयोटा d, बिकॉज हमें डिफरेंट लेने हैं. x1 प्लस आयोटा y, x2 प्लस आयोटा y2 वैसे भी कंसिडर किए जा सकते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पार्ट हम इक्वल लेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड इज z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें z1 प्लस z2 निकालना पड़ेगा. दैट विल बी
a plus iota b plus c plus iota d. So as addition we perform, a real part will be added to real part, so it will be a plus c, and imaginary part will be added to imaginary part, which will be b plus d. So z1 plus z2 आ गया, then z1 plus z2 conjugate. So now I am taking conjugate of this term. So conjugate of this term कैसे लेना है, हमने सिर्फ आयोटा का जो है वो साइन चेंज करना है. So it will be a plus c. So आयोटा यहाँ पे पॉजिटिव है, it will be changed to negative sign. Now I am opening the bracket, a plus c minus iota b minus iota d. So it will be a minus iota b plus c minus iota d. It is z1 conjugate प्लस z2 कॉन्जुगेट. यहाँ से क्लियर है, z1 कॉन्जुगेट विल बी a माइनस आयोटा भी, और z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, c माइनस आयोटा. यहाँ पे हम पहले फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट विल बी z1 कॉन्जुगेट प्लस z2, तो प्रूव हो गया. सिमिलरली हम नेगेटिव के लिए प्रूव कर सकते हैं. सेम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट और डिवीजन में से एक पार्ट कर लेते हैं, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट. सो हमें ये फाइंड आउट करना है पहले. तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हम z1 इंटू z2 फाइंड आउट करेंगे, विच इज a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d. सो हाउ वी मल्टीप्लाई, पहले a मल्टीप्लाई होएगा होल टर्म से, फिर आयोटा b वाली टर्म, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं हम. दिस विल बी a इंटू सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्केयर बी डी. आयोटा स्केयर बी डी विल बी माइनस बी डी, बिकॉज आयोटा स्केयर इक्वल टू -1. सो रियल पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं. रियल पार्ट विल बी ए सी माइनस बी डी और इमेजिनरी पार्ट विल बी ए डी प्लस बी सी. सो z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, दैट विल बी ए सी माइनस बी डी, नेगेटिव साइन ऑफ ए डी प्लस बी सी. नेगेटिव क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट ले रहे हैं, आयोटा का साइन चेंज कर देना. सो z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस वन. सो नाउ टेक द राइट हैंड साइड, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा दोनों साइड को प्रूव करना. सो सबसे बेटर तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट साइड मैंने प्रूव करनी है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2. ये वाला पार्ट जो है वो भी फाइंड आउट करें, दोनों जो है वो इक्वल आ जाएंगे. सो मेरे पास z1 z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी. नाउ आई विल टेक द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम पहले z1 कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर z2 कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो z1 कॉन्जुगेट इज a माइनस आयोटा b एंड z2 कॉन्जुगेट इज c माइनस आयोटा d. सो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट विल बी a माइनस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d. सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी माइनस, पहले a मल्टीप्लाइड विद द होल टर्म, आई एम ओपनिंग दिस ब्रैकेट, आयोटा ए डी and then minus iota bc, minus minus will be plus iota square bd. So it will be ac and it will be minus bd. Then take minus iota common, it will be ad plus bc. So z1 into z2 conjugate is ac minus bd minus iota into ad plus bc, which is equal to z1 into z2 conjugate. So I have proved this. Similarly, I can prove z1 over z2 whole conjugate. First divide these two numbers, rationalize it, then take whole conjugate, which is equal to z1 conjugate and z2 conjugate, separate out. But there is a condition that denominator cannot be equal to 0. So these are the basic properties of conjugate of complex numbers, which we will use in the next exercises and in the questions. Thank you for watching.